Students, welcome back in this first video of finite and non-finite verb. Students, in the previous videos I have already told you about a very basic and very important topic of clause and types of clause. Students, if you don't watch my previous videos, so please watch it. Okay, but students, today here we will learn about finite verbs and non-finite verbs. Well, first let's look at a finite verb. Finite verbs are nothing. But students, before learning the finite verbs, we will learn about the verbs. So, there are two kinds of verbs, auxiliary verbs and main verbs. Auxiliary verbs are also known as helping verbs. What is helping verb? A verb which is used to help an ordinary verb is called helping verb. Okay. There are two kinds of auxiliary verbs, primary auxiliary verbs and modals auxiliary verbs. What is primary auxiliary verbs? Verb to do, verb to have, verb to be are also called primary auxiliaries. What is verb to do? What is verb to have? What is verb to be? So, do, does, did are called verb to do. Has, have, had, having are called verb to have. Be, being, been, is, am, are, was, were are called verb to have. What is modals auxiliaries? May, might, shall, should, will, would, can, could, ought to, used to, must, need are called modals auxiliaries. I hope students you will have absolutely understood about auxiliary verbs. Now we will discuss about the main verbs. I know very well that you will definitely know about the main verb V1, V2, V3, V4, V5. But you will not know about the types of main verb. Students, it's alright. I tell you about the types of main verb. So there are two types of main verbs, finite verb and non-finite verb. Okay, students, I will soon tell you about the finite verb, but students, I want to give a brief introduction about the non-finite verb. So there are three kinds of non-finite verb: infinitives, gerund, participle. What is infinitives and what is the types and forms of infinitives? So there are three types of infinitives: simple infinitives, progressive and continuous infinitives, and perfect infinitives. What is simple infinitives? So the forms of simple infinitives are to preposition to plus verb की first form, verb की first form, to work, for example टू वर्क. आई एक्सप्लेन इन हिंदी. जो सिंपल इन्फिनिटिव्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि पहले तो प्रीपोजिशन लगाना होता है. प्रीपोजिशन जो टू है वो लगाना होता है, फिर उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने दिया है टू वर्क. प्रोग्रेसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, इसमें पहले हमें टू बी लिखना होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. फॉर एग्जांपल टू बी वर्किंग. परफेक्ट इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, इसमें पहले हमें टू हैव लिखना होता है प्लस पास्ट पार्टिसिपल लिखना होता है. पास्ट पार्टिसिपल वो होते हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. फॉर एग्जांपल टू हैव वर्क. अगर आपको सेंटेंस के बिगनिंग में या बीच में कहीं भी वर्क टू वर्क मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे ये प्रीपोजिशन लगा हुआ दिख रहा है, ठीक है, या फिर इस तरह से दिखता है, वर्ब के सेंटेंस के बीच में इस तरीके से दिख रहा है टू बी वर्किंग, टू वर्क या टू हैव वर्क, तो ये समझ लीजिए ये क्या है, इन्फिनिटिव्स हैं. Okay, what is the parts of participle? So there are three types of participle: present participle, past participle and perfect participle. Students, I will soon to provide you a video of non-finite verbs after this video. Okay, so what is finite verbs? Every sentence needs a finite verb. A finite verb is a form of a verb that has a subject and can function as the root of an independent and dependent clauses. On the other hand, a finite verb gives a grammatical information of person, number and tense of a subject in a sentence. I explain in Hindi. सभी सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब की
हमेशा नीड होती है, ठीक है। एक फाइनाइट वर्ब जो क्या होती है, एक वर्ब की फॉर्म होती है। फॉर्म आपने पढ़ा होगा V1 V2 V3 V4 V5, जितने भी 5 फॉर्म्स होती हैं वो होती हैं फाइनाइट वर्ब, ओके। इसके अलावा एक सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, ठीक है। एक फाइनाइट वर्ब के पास क्या होना चाहिए, दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड कैन फंक्शन। फाइनाइट वर्ब के पास एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। वो सब्जेक्ट की एक क्या होती है, एक वर्ब होती है, ठीक है। वो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, ठीक है। एक फाइनाइट वर्ब कार्य कर सकती है, ठीक है, किसके रूप में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज। या तो इंडिपेंडेंट क्लॉज की रूट बन सकती है या फिर वो डिपेंडेंट क्लॉज की रूट बन करके का फंक्शन कर सकती है, ठीक है, कार्य कर सकती है। इसके अलावा एक फाइनाइट वर्ब गिव्स देती है ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन। ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन किसकी इंफॉर्मेशन देती है, एक पर्सन की, नंबर की और टेंस की। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के टेंस, नंबर और पर्सन की ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराती है एक फाइनाइट वर्ब। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। एक्ट एज अ हेल्पिंग वर्ब, मतलब एक फाइनाइट वर्ब एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे कार्य करता है वो देख लेते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए, शी इज़ अ टीचर। इन दिस सेंटेंस जो ये हेल्पिंग वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ फाइनाइट वर्ब। इस सेंटेंस में इसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट वर्ब बोलेंगे, ठीक है। फिर देखिए तो यहाँ पर जो इज़ है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर, यहाँ फाइनाइट वर्ब जो इज़ है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रही है, ठीक है। दूसरा देखिए, एक्ट एज द मेन वर्ब ऑफ अ क्लॉज। यहाँ फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आई राइट अ लेटर। यहाँ पर देखिए ये क्या है, V1 है, ठीक है, V1 लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर इससे आपको पता चल रहा है ये क्लॉज की क्या है, बनी हुई है मेन वर्ब। यहाँ फाइनाइट वर्ब जो राइट है, ये राइट क्या है, फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पर एक क्लॉज मैंने आपको एक वीडियो पहले ही बता दिया और शुरुआत में भी मैंने इंट्रो में बता दिया। अगर आपने क्लॉज के बारे में नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके क्लॉज के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइनाइट वर्ब है राइट जो है वो एक क्लॉज की मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है फाइनाइट वर्ब। तीसरा इसका ये है, इंडिकेट पर्सन, नंबर और टेंस। फाइनाइट वर्ब किसी भी सेंटेंस में टेंस, नंबर और पर्सन को इंडिकेट करती है, ठीक है। यहाँ फॉर एग्जांपल देख लीजिए, शी वॉज वेटिंग इन द रूम। यहाँ पर वॉज और वेटिंग, पहले देखिए सेंटेंस किस में है, फाइनाइट वर्ब ये बता रही है, ये दोनों फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब भी और ये मेन वर्ब भी, ये दोनों क्या है, फाइनाइट वर्ब है। इससे ये बता रहे हैं कि टेंस किस का तरीके का है। यहाँ पर टेंस क्या है, पास्ट टेंस है। यहाँ पर ये बता रही है पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में कौन सा एक्शन है ये भी फाइनाइट वर्ब शो कर रही है। इसके अलावा नंबर के अकॉर्डिंग एक फाइनाइट वर्ब एक पर्सन के, नंबर के और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी होती है, ठीक है। मतलब उसको शो भी करती है, इंडिकेट भी करती है और चेंज भी होती है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। कैसा नंबर है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ कैसे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, वे फर्स्ट फॉर्म मतलब वॉज और वॉज लगती है, ठीक है। और वो इसी तरीके से तो ये क्या है, हमेशा क्या होता है, एक फाइनाइट वर्ब किसी भी टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है और इंडिकेट भी करती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको इंडिकेट भी कर रही है और शो भी करा रही है, ठीक है, कि यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ में वॉज लगता है, ठीक है। और यहाँ पर सिंगुलर के साथ में वॉज लगता है और टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या लगाना है, पास्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रही है। अगर यहाँ पर इसको प्रेजेंट टेंस में कर दें तो फाइनाइट वर्ब चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो शी इज़ वेटिंग हो जाएगा। अगर इसको अगर फ्यूचर में कर दें तो इसमें विल और शैल लगने लगेगा, शी विल वेटिंग। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से फाइनाइट वर्ब क्या होती है वो बदलती रहती है किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग एंड टेंस के अकॉर्डिंग और इंडिकेट भी करती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा फाइनाइट वर्ब हमेशा क्या है, पास्ट टेंस और पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस में ही यूज़ होती है। अक्सर बेटा फाइनाइट वर्ब का यूज़ सिर्फ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में ही होता है। एक एग्जांपल देखिए, यू प्रॉमिस्ड मी द लास्ट टिकट। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, वे यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म देख रहे हैं, एक पास्ट टेंस है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉमिस्ड क्या है, फाइनाइट वर्ब है। इसके अलावा मैंने कहा है कि एक फाइनाइट वर्ब डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों में ही दिखाई पड़ती है, ये दोनों में ही ये उसका रूट बनकर कार्य करती है। यहाँ पर देखिए, चार्ल्स सेड दैट ही इंजॉयड
पेंटिंग। यहाँ पर देखिए चार्ल्स सेड, जो सेड है यहाँ पर ये क्या है, ये पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पर सेड क्या है, फाइनाइट वर्ब है। इसके अलावा देखिए कंजंक्शन लगा हुआ है, ठीक है, कंजंक्शन लगा हुआ है। ये इतना पार्ट क्या है, पूरा डिपेंडेंट क्लॉज है। ये डिपेंडेंट क्लॉज है इस क्लॉज पर, ठीक है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है इस क्लॉज पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। यहाँ पर इस डिपेंडेंट क्लॉज में जो वर्ब आपको इंजॉयड दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। ये क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है और ये भी एक फाइनाइट वर्ब है। तो इस सेंटेंस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों ही सेंटेंस में आपको क्या है, फाइनाइट वर्ब दिख रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।